बिजनेस और टूरिज्म इंडस्ट्री का भारत के इकोनॉमी में अहम योगदान है और इसी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और प्राइवेट कंपनियां कदम से कदम मिलाकर नित नए आयाम स्थापित कर रही हैं। इसी कड़ी में BLTM, जो कि बिजनेस और टूरिज्म इंडस्ट्री में भारत की एक अग्रणी कंपनी है, उसने दिल्ली के लीला होटल में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें इस व्यवसाय से जुड़े देश विदेश के नामी गिरामी लोगों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में सभी इस बात पर एकमत थे कि कोरोना काल में इस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई आगे आने वाले दिनों में कैसे की जाए, इसकी रणनीति और रूपरेखा सेमिनार में तैयार की गई। देखिए इस पर हमारे संवाददाता शाहरुख की ये खास रिपोर्ट। तो हमारे साथ है विशाल झेलापुरम, जो कि स्टारलिंक रिसोर्ट्स के मार्केटिंग हेड हैं, जनरल मैनेजर। उनसे बात करेंगे कि 2 साल बाद इवेंट प्लान करा गया है, जिसको बाहर निकल के लोग बात कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह से मार्केट बूम करी, किस तरह से मार्केट ऊपर आई और क्या कुछ परेशानियाँ उन्होंने झेली और क्या कुछ चीज़ें उनको हेल्प करी इस दोबारा से सिचुएशन से लड़ने के लिए। सर हाय शाहरुख, पहली बात तो TTF और BLT में आने के लिए इट्स बीन अ ग्रेट एवेन्यू फॉर स्टर्लिंग। As you rightly said, after COVID 2 साल बाद स्टर्लिंग को बाहर निकल के we wanted to showcase our resorts, we wanted to showcase our network, our destinations. It was a great platform. We could meet a lot of travel partners, preferred partners बनाए गए थे कहीं यहाँ पे. In fact, we were able to identify very interesting destinations where we can possibly expand in the future, in the times to come. And on behalf of Sterling, we felt that TTF and BLTM were actually very good starters for 2022. And we hope that this continues for us. In fact, during the COVID period, one thing that Sterling very smartly did is we focused on reaching out to many smaller properties across India. We acquired them on a management contract basis. So that actually made us expand our network on a very asset-light model. We became the management contract companies and started managing many of hotels across India. So we actually didn't stop. So Sterling continued to expand its resort network footprint across India. And yes, there were little challenges during the COVID period, but I think it didn't really impact much. We were able to successfully cope up with the challenges. Move on. So as we are witnessing again increasing day by day and the situation is getting tough day by day, so what's your plan in upcoming days? We're going to take it as it comes. We have a very strong hygiene and sanitation program at the hotels. It's called Sterling Cares, and that Sterling Cares actually was designed in a certain fashion to help keep our guests as well as the employees safe. So we have Sohan Chandiram with us, who is a marketing head of Cinnamon Resort and Hotel. So thank you so much for giving your precious time, sir. You're welcome. Thank you very much for your time too. Sir, it's been almost 2 years, more than 2 years since we have witnessed a huge pandemic which caused a huge loss to the industry, basically, especially to the tourism sector. So what was your take in that? Yeah. So during the situation, the hardest hit was the tourism industry because travel stopped completely into zero. Travel as in yacht travel, to travel as in internal travel, to tourism and also MICE and events and groups that also traveled. However, so we had to hold back and wait till the industry changed, until the situation in the world changed, so that there would be release of, people could travel again. So thereafter, from there, we picked up by, it took us a few months, by about 6 months, the industry took a while to pick up, to gain the confidence of people to travel with the travel assurance and the vaccinations. Thereafter then the travel picked up and we had a very good couple of months towards the end of last year, and we see a little bit of slowdown because of the economic problem at the moment. However, we hope that the business will pick up in the next couple of months once again. Sir, as we are all witnessing, again the situation is getting quite disturbing, quite the cases of COVID rising day by day. So what's your planning in upcoming days? How are you planning, your company, your team is planning to cope up with this upcoming situation, sir? Yeah.
So what we have is that there are the conditions which have been put by the governments and the health sector, which is for vaccinated people to travel. So we encourage people who travel to take their vaccinations and be safe and secure, so that they could, when they travel, that it would be safe for the people that they move around, for the industry people, plus also for the rest of the people who they are staying with in the hotel sectors. And so we hope that this will change, because it has to change and travel has to happen. And people are all frustrated staying in their houses for the past 2 years. People want to get out, and people have always looked into getting out of their houses and going places. So the only way to get out of this is to get their vaccinations and get safe, so that they could travel safely. तो हमारे साथ है सचिन KS, जो कि नेशनल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजर हैं, जो कि ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल एंड रिजॉर्ट्स है। उनसे बात करेंगे कि 2 साल बाद हम दोबारा आ रहे हैं, बात करने वाले हैं बिजनेसेस के बारे में। तो किस तरह की सिचुएशन रही सर 2 साल पहले की, अब की सिचुएशन क्या है और आपकी क्या प्लान्स है आगे? सर अभी जो फ़िलहाल हालत है वो काफ़ी बेहतर है। ये 2 साल में हमने जो देखा है, कोविड के टाइम पे कोई ट्रैवल नहीं करना चाहता था, या फिर किसी को रिस्ट्रिक्शंस होते थे ट्रैवल करने में, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन डाल देती थी या फिर कोई और स्टेट रिस्ट्रिक्शन डाल देती थी, तो इससे काफ़ी दिक्कत होती थी। इससे पहले जो था, कोविड आने से पहले जो था, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे, मार्केट सेट होते थे। अभी जो है काफ़ी रेट्स भी कम हो गए हैं होटल्स के, इन्वेंट्रियाँ बढ़ गई हैं, तो इससे उतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर हमें 2019 तक वापस जाना है तो इसमें कम से कम और एक 5-6 साल लग सकते हैं, क्योंकि हम ये 2 साल कोविड में काफ़ी पीछे आ गए हैं। तो अभी आगे क्या है वो समय ही बताएगा। सर जिस तरह की सिचुएशन आपके बिज़नेस ने देखी है, किस तरह से आप ऊपर आए, किस तरह की सिचुएशन आपने फेस करी आपकी टीम ने? काफ़ी मुश्किलें थी हमें कोविड के टाइम पे। हमारे होटल्स में बिज़नेस नहीं होते थे, तो फिर हमें कुछ होटल्स कोविड केयर सेंटर बनाना पड़ा और कुछ होटल्स हॉस्पिटल्स को देना पड़ा। बट अभी काफ़ी सारे होटल्स के बिज़नेस स्पाइक अप हो गए हैं, तो हमारे होटल के जो ऑक्यूपेंसी लेवल है वो करीब 80 तक जा चुके हैं ऑलरेडी। और अगर हमारी टीम ऐसे ही काम करती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं जहाँ हम बस सबको बोलते रहेंगे सोल्ड आउट सोल्ड आउट सोल्ड आउट। सर जिस तरह अभी हम देख रहे हैं तो दोबारा से केसेस राइज हो रहे हैं कोविड के, और धीरे धीरे सिचुएशन फिर वैसे ही हो रही है जैसे पहले की थी। तो आपकी क्या प्लान्स है अपकमिंग डेज में, मतलब किस तरह से सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं? फ़िलहाल अभी जो केसेस बढ़ रही है तो उसमें उतने सारे प्रॉब्लम होने वाले नहीं हैं, जैसे लॉकडाउन या फिर रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं होने वाले हैं लगते हैं हमें। तो फिर अगर वैसे होते भी हैं तो फिर अभी सेट प्लान है कि बिज़नेस को कैसे लेके जाना है, कौन सा नए सेगमेंट में हम लोग देख सकते हैं करके, तो ये सारे हमने ऑलरेडी प्लान करके रखे हुए हैं। APN न्यूज़ जो नया कॉन्क्लेव बना रहा है, दैट इज़ रियली एन इनोवेटिव, जहाँ पे टूरिज़्म मिनिस्टर्स जो है हमारे अलग अलग स्टेट्स के, ये सारे एक ही जगह पे मिलेंगे। एंड इट इज़ रियली ए वेरी गुड इनिशिएटिव वेयर द टूरिज़्म ऑल्सो शुड नाउ टेक टूरिज़्म एंड हॉस्पिटलिटी एज अ वेरी सीरियस बिजनेस। हमें अधूरा छोड़ा गया था कोविड के टाइम पे, बट आपकी चैनल ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रही है एंड वी वुड लव टू पार्टिसिपेट। तो हमारे साथ हैं आलोक चक्रवर्ती, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग हेड हैं नॉर्थ इंडिया के। तो उन्हीं से जानेंगे कि सर 2 साल के बाद इस तरह के इवेंट कराया गया है, जहाँ पे मतलब बड़े बड़े बिजनेस मिल के बिज़नेस की बातें करें, टूरिज़्म की बातें करें, लेकिन अगर बात करें 2 साल पहले की, कितना आपने मतलब कितना नुकसान झेला आपने, क्या सिचुएशन आपने देखी और उसको कूप अप करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? धन्यवाद। होटल इंडस्ट्री जो 2 साल में बहुत ऐसे दौर से गुजरी है जिस पे कि हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, हमारे टीम के लिए चैलेंजिंग था, लेकिन जिस तरह से हमने ये वेव हैंडल किया पिछले 2 साल से, हमारे लिए कुछ लर्निंग्स थी, हमने कुछ चीज़ें सीखी है, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करी है। तो ये कह सकता हूँ हम अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। हमने हाइजीन जिस तरह से फैक्टर किया होटल के लिए, लीला होटल पर्टिकुलरली हमने ब्यूरो वेरिटास से सर्टिफिकेशन लिया है ऑन हाइजीन स्टैंडर्ड्स विच इज़ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड, और हमारे होटल्स प्लैटिनम सर्टिफाइड है हाइजीन लेवल पे। लेकिन अब कोविड होने के बाद अब जो जिस तरह का एक्साइटमेंट, जिस तरह का बज़ मैं देखता हूँ मार्केट में, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लेटफॉर्म इसको प्रूव करता है कि किस तरह से बायर्स और सेलर्स एक प्लेटफॉर्म में इतने इंकरेजिंग रिस्पांस हमें मिला है कि हम लोग सब बिज़नेस की बातें कर रहे हैं इस माहौल में। और जिस तरह की होटल आजकल ऑक्यूपेंसी जिस तरह से ड्राइव हो रही है हमारे सारे होटल्स में, चाहे वो बिज़नेस होटल हो चाहे वो रिजॉर्ट्स हो,
आई थिंक ये बहुत इंकरेजिंग साइन है सबके लिए कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और इसलिए हम ये बिज़नेस की बातें कर रहे हैं अपने डेलीगेट्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ। सर मतलब लोगों के अंदर अभी भी थोड़ा सा डर बना हुआ है, अगर ट्रैवल की बात करें अभी भी डर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं डे बाय डे, लोग ट्रैवल तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से उनको मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उन लोगों को क्या सजेशन देंगे जो ट्रैवल करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे? देखिए, ट्रैवल आप जब करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप जो है आप कौन सा होटल जो है वो सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करता है। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम कॉन्स्टेंटली ये बोलते रहते हैं मार्केट में कि हम जो है प्लैटिनम सर्टिफाइड ब्यूरो वेरिटास से है कोविड प्रोटोकॉल में, चाहे हमारा बैक ऑफ द एरिया हो, चाहे स्टाफ एंगेजमेंट हो, वैक्सीनेशन ऑफ द स्टाफ हो, ये कंपनी खुद लेती है हमारी लीला एज ए कंपनी। हमने सारे स्टाफ को और उनके मेंबर्स को खुद वैक्सीनेट किया। आई थिंक कहीं ना कहीं ये कोविड प्रोटोकॉल्स जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है ये हमें फॉलो करना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है एक गेस्ट के लिए जब वो कोई होटल चूज़ करते हैं, चाहे वो बिजनेस ट्रैवल हो चाहे वो लेजर ट्रैवल हो। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आज के में, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आजकल कि कौन सा होटल चेन है जो ये प्रोटोकॉल फॉलो करता है।